Haloalkanes and the haloarenes. Introduction part: the replacement of the hydrogen atoms in a hydrocarbon, aliphatic or aromatic, by halogen atom results in the formation of the alkyl halides, that is haloalkane, or aryl halide, that is haloarene, respectively. Haloalkanes contain halogen atoms attached to the sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, whereas haloarenes contain a halogen atom attached to the sp2 hybridized. Therefore haloalkanes और haloarenes के दरमियान जो मेन डिफरेंस है, haloalkanes में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 एंड haloarenes में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2. Hello, main difference. The first difference halogen. Many halogen containing organic compounds occur in nature, and some of these compounds clinically useful. These class of compounds find wide applications in the industry as well as in day-to-day life. They are used as solvents for the relatively non-polar compounds and as starting materials for the synthesis of wide range of organic compounds. Chlorine containing antibiotic, example chloramphenicol. यहाँ पे कुछ important uses है haloalkanes की जो दिए गए हैं. The first one is chloramphenicol. It is a chlorine containing haloalkane. It is used as an antibiotic. Similarly, chloroquine, it is also chlorine containing haloalkane. It is used to treat malaria. Halothane is used as an anesthetic. Halothane maybe it is an example of haloalkane. Halothane. Fluorinated compound substitute for the blood in surgery. मैंने पहले डाला था community post में question, which of the following is used as a substitute for blood in surgery. Substitute for blood in, that is fluorinated compounds can be used as a substitute for blood in surgery. Fluorinated compounds can be used for as a substitute for blood in surgery. Chloramphenicol is an antibiotic. Chloroquine is used to treat the malaria. Halothane is used as an anesthetic. Certain fluorinated compounds. इसका जो इंट्रोडक्शन का क्रक्स है जो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. Chloramphenicol, it is used as an antibiotic. Chloroquine, it is used to treat malaria. Halothane, it is used as an anesthetic. एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है हेलोथेन को. इसीलिए इसी तरह फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्लड इन सर्जरी. कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड इन सर्जरी. कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड इन सर्जरी. ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन. अगर एक हेलोजन था, मैं मोनो हेलो अल्केन, दो हेलोजन डाई हेलो अल्केन, तीन हेलोजन ट्राई हेलो अल्केन, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन रेस्पेक्टिवली. मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो compounds containing the sp3x bond. Compounds containing sp3 carbon and x bond, single bond x, single bond x. Alkyl halides or the haloalkanes. Alkyl halides. In alkyl halides, the halogen atom is bonded to an alkyl group. They form a homogeneous series representing CnH2n plus 1 X. They are further classified as primary, secondary or tertiary according to the nature of the carbon to which the halogen atom is. अगर halogen atom जिस कार्बन के साथ अटैच होता है डायरेक्टली उसको कहते हैं हम अल्फा कार्बन. अगर अल्फा कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच हुआ हो उसको कहते हैं हम प्राइमरी हेलोअल्केन. अगर अल्फा कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच हुए हो डायरेक्टली उसको कहते हैं सेकेंडरी हेलोअल्केन. इसी तरह अगर अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तीन कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तीन कार्बन, उसको कहते हैं हम टर्शियरी हेलोअल्केन. अलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड. अलाइलिक हैलाइड बेंजाइल हैलाइड में दोनों में, अलाइलिक हैलाइड बेंजाइल हैलाइड दोनों में sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज होती है कार्बन की. x is directly attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, and that is to an allylic carbon, allylic carbon. These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond cc bond, that is to an allylic carbon. These are compounds in which halogen atom is to sp3 hybridized carbon next to the aromatic ring होती है इसके next. Aromatic ring. These are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon next to an क्रक्स के लिए. है बड़ा पहले ही sp3 अगर होगा फिर होगा कार्बन, यह दूर अगर यहाँ से डबल बॉन्ड होगा इट इज़ अलाइल होगा. sp3 कार्बन होगा x, फिर होगा c, फिर डबल बॉन्ड, इट इज़ sp3. इट इज़ अलाइलिक, नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग. इसको कहते हैं एलाइलिक. इसी तरह अगर x होगा फिर होगा c, फिर होगा सिंगल बॉन्ड, लेकिन जो डबल बॉन्ड होगा ये होगा पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग. तो इसको कहते हैं हम बेंजाइल. कहते हैं बेंजाइल. ये कार्बन होता है sp3. एलाइल हो या बेंजाइल हो दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की. दोनों में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन इज sp3. एलाइलिक और बेंजाइल. इसी तरह अगर हमारे पास x हो फिर हो कार्बन फिर डबल बॉन्ड, मतलब s हो गया sp2, ये होगा एलाइलिक, इसको कहते हैं विनाइल.
अगर इसी तरह एक्स हो फिर हो सी फिर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे sp2 है, इसको कहते हैं हम फिनाइल, और वी कैन से दैट एराइल, विनाइल एराइल, विनाइल एराइल। पहले अलाइलिक नॉन पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, फिर बेंजाइल, अलाइलिक और बेंजाइल दोनों में, अलाइल हो या बेंजाइल हो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3। फिर अगर एक्स होगा कार्बन के साथ अटैच, फिर वो कार्बन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड हो, अगर डबल बॉन्ड पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग नहीं है, एलिफैटिक रिंग का पार्ट है या एलिफैटिक चेन का पार्ट है, उसको कहते हैं हम विनाइल हेलो अल्केन। इसी तरह अराइल हेलो अल्केन कहते हैं जहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो sp2, दैट इज अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो sp2, उसके एडजेसेंट जो डबल बॉन्ड हो वो पार्ट हो एरोमेटिक रिंग का, उसको कहते हैं हम एराइल, उसको कहते हैं हम एराइल हेलो अल्केन। ये है 4 टाइप्स ऑफ द हेलो अल्केन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन। नॉमेनक्लेचर पढ़ा ही हमने, एंड प्रोफाइल ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है तो पढ़ा है, ये पहले ही पढ़ा है, फिर भी देखेंगे ऊपर ऊपर से। Having learned in the classification of the halogen compounds, let us now see how they are named. The common names alkyl halides are derived by naming the alkyl group followed by the halide. Alkyl halides are named as the halo substituted hydrocarbons in the apex system of the nomenclature. Haloarenes are common names that are apex names of aryl halides. For the halogen derivatives, the prefixes ortho, meta, para are used in common and propyl bromide, normal propyl bromide, इसको isopropyl bromide, and propyl isopropyl isobutyl chloride, the bromobenzene, ortho, meta, metabromobenzene, symmetrical tribromobenzene, it is symmetrical है, symmetrical tribromobenzene, symmetrical tribromobenzene। यहाँ पे important point है, the dihaloalkanes having the same type of halogen atoms are named as alkylidene or alkyline dihalides, alkylidene or alkyline dihalides। The dihalo compounds having same type of the halogen atom are further classified as geminal halides, atoms present on the same carbon atom, and vicinal halides, atoms present on the adjacent carbon atoms. In the common names, the gem dihalides are called as alkylidene halides, and vicinal dihalides are called as alkyline dihalides, alkylidene dihalides or alkyline dihalides। यहाँ पे dihaloalkanes विसिनल, अगर एडजेसेंट कार्बन इसको या एक कार्बन पे दो हेलोजन हो, इनको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, कहते हैं जिमिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स और जिमिनल डाइहैलाइड्स। जिमिनल डाइहैलाइड्स और कॉल्ड अल्काइलिडीन हैलाइड्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो जिमिनल डाइहैलाइड्स को कहते हैं उनको कहते हैं अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स। जिमिनल को कहते हैं अल्काइलिन, उनको कहते हैं अल्काइलिन डाइहैलाइड्स, इनको कहते हैं अल्काइलिडीन, इनको कहते हैं अल्काइलिन डाइहैलाइड्स, अल्काइलिन डाइहैलाइड्स, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स। आईपैक ने नॉमेनक्लेचर पहले ही पढ़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं देना है, उसको पहले पढ़ा है। विसिनल कहते हैं विसिनल, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे जब हो, विसिनल को सिंपली अल्काइलिन डाइहैलाइड कहते हैं। इनको कहते हैं जिमिनल डाइहैलाइड्स को कहते हैं हम अल्काइलिडीन, जिमिनल को कहते हैं अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। याद रखना इसमें क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, सिंपली याद रखना अल्काइलिडीन डाइहैलाइड। नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, इस पर आया था क्वेश्चन हमें पिछली बार नीट 2021 में, जो क्वेश्चन आया था इसी में आया था, इस चार्ट में से आया था, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर आया था, डायरेक्टली इस चार्ट में से आया था क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी आया था नीट 2021 में क्वेश्चन, यहाँ से वो पूछा गया है वो क्वेश्चन, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर दिया गया था यहाँ पे। CH3 CH3Cl, देखो यार CH3 FCH3Cl जितना नीचे जाएंगे उतना जो हैलोजन का उसका साइड बढ़ेगा, जितना वो साइज़ बढ़ेगा वो तो कार्बन से दूर ही जाएगा, जितना दूर जाएगा बॉन्ड सिस्टम में बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। यही ऑर्डर था, उसमें आया था नीट 2021 में, सीधे NCERT के चार्ट से निकाला था पेपर, क्वेश्चन निकाला था यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। सिंपली है, जब हम फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जाएंगे साइज़ ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज हो जाएगा, जब साइज़ ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज हो जाएगा तो उनका जो इंटरेक्शन होगा कार्बन हैलोजन की तरफ वो डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर नेचर की बात करेंगे हैलोजन कार्बन हैलोजन बॉन्ड की नेचर, कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये तो पता ही है। देयरफॉर जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है इन द हैलोअल्केन दैट इज टोटली प्योरली पोलर,
इट इज़ पोलर, क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. हेलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. हेलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. फिर होगी बात डिफरेंट साइज की, लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ. देखो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करेंगे CH3F, फिर होगी CH3Cl फ्लोरीन, क्लोरीन, CH3Br, CH3I. जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हम, लेंथ तो बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी. सिंपल यही याद रखना है, लेंथ बढ़ेगी. बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर घट जाएगी उससे मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा, बर्निंग पॉइंट भी घट जाएगा. दैट सिंपल. बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी. डायपोल मोमेंट यहाँ पे याद रखना है 1.84, 7.86, 0.30. यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड है डायपोल मोमेंट का. यहाँ से यहाँ इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो जाता है, फिर से मैक्सिमम CH3Cl होगा. सिंपल याद रखना है यहाँ पे. और नेचर में याद रखना है इसमें मेन इंपॉर्टेंट नेचर, जो अल्काइल है, हेलोजन में बॉन्ड होता है, हेलो अल्केन में बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, दैट्स टोटली पोलराइज्ड बिकॉज लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द हेलोजन एंड द कार्बन. इसके अलावा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वो हमने पहले ही पढ़ा. sp2 हो सकती है, बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है. ये नीट 2021 का क्वेश्चन आया था. डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर यहाँ पे प्योरली नहीं दिया गया है. डायपोल मूवमेंट अगर हम ऑर्डर याद भी रखेंगे उतना भी नहीं आता है, कभी नहीं आया डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर, पर अगर आया तो 2 1 4 3 याद रखेंगे सीधे ही. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है फ्लोरीन, फिर आयोडीन, फिर होता है ब्रोमीन के लिए. अभी हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने यूज पढ़ी, यूज में पढ़ा हमने पहले ही. अगर हम थोड़ा सा रिवाइज लेंगे, पहले ही पढ़ा हमने क्लोरोफेनिकॉल. क्लोरोफेनिकॉल इट्स अ क्लोरीन कंटेनिंग हेलो अल्केन, इट्स कैन बी यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक. दूसरा हमने पढ़ा क्लोरोथिन. क्लोरोक्विनिन में भी क्लोरीन होता है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया. इसी तरह हेलोथिन, इट इज एन एसिडिक फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड इन सर्जरी. उसके बाद पढ़ा हमने एलाइलिक हेलाइड्स, उसके बाद बेंजाइलिक हेलाइड. एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलाइड्स में दोनों में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है. एलाइलिक में कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड होता है, एडजेसेंट डबल बॉन्ड होता है, वो पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग नहीं होता है, पार्ट ऑफ एलिफैटिक चेन, एलिफैटिक रिंग होता है. इसी तरह जो बेंजाइलिक हेलाइड्स होते हैं, बेंजाइलिक हेलाइड्स में भी कार्बन जो अल्फा कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, उसकी एडजेसेंट जो डबल बॉन्ड होता है दैट इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग. उसके बाद हमने पढ़ा विनाइल हेलाइड्स एंड द अराइल हेलाइड्स. विनाइल हेलाइड्स और अराइल हेलाइड्स दोनों में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है. विनाइल हेलाइड्स में कार्बन के एडजेसेंट डबल बॉन्ड होता है एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग. इसी तरह फिर अराइल हेलाइड्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, उसकी एडजेसेंट जो डबल बॉन्ड होता है विच इज पार्ट ऑफ द एरोमेटिक रिंग, विच इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग. फिर नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है जिमिनल डायहालाइड्स और विसिनल डायहालाइड्स का नाम. विसिनल डायहालाइड्स को कहते हैं हम सिंपली अल्काइलिन डायहालाइड्स. जिमिनल डायहालाइड्स को कहते हैं अल्काइलिडीन डायहालाइड्स. विसिनल डायहालाइड्स अल्काइलिडीन डायहालाइड्स, ये याद रखना है. उसके बाद थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के बाद हमने पढ़ा नेचर ऑफ CX बॉन्ड में हमने पढ़ा जो जो CX बॉन्ड होता है इन द haloalkane haloarene, it is highly polar in nature because of large difference in the electronegativity between the carbon and the halogen. इसके अलावा अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे हम तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी. डायपोल मोमेंट का एक रेगुलर टर्म नहीं है, क्लोरीन के लिए मैक्सिमम होता है. फिर 2143 अगर याद रहेगा तो रख सकते हैं 2143. उसके बाद हम प्रेपरेशन करेंगे हेलो अल्केन्स की. फर्स्ट प्रेपरेशन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अल्कोहल. अल्कोहल्स को हम बहुत तरीक़ों से कन्वर्ट कर सकते हैं हेलो अल्केन. हमारा मकसद है अल्कोहल से प्रिपेयर करना हेलो अल्केन, ROH से प्रिपेयर करना RX. वो हमें किसी तरह से OH को बाहर निकालना है और X को इंट्रोड्यूस करना है किसी तरह. वो हमारे हर किसी रिएजेंट में तो X प्रेजेंट होगा ही होगा, हमारे हर किसी रिएजेंट में X प्रेजेंट होगा ही होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे ROH प्लस HX इन प्रेजेंस ZnCl2, हमारे जो रिएजेंट है उसमें तो या रिएक्टेंट है उसमें ज़रूरी हेलोजन होगा ही होगा. इसमें भी हेलोजन है, इसमें भी हेलोजन है. तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना आसान. उसके बाद अगर हमारे रिएजेंट में हेलोजन है उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली रिएक्शन है, अल्कोहल को प्रिपेयर करें, अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे हम हेलो अल्केन्स फ्रॉम यूजिंग द HX, दैट इज हेलोजन एसिड. फिर करेंगे इसी तरह यूज फॉस्फोरस हैलाइड्स PX3 PCl5. इसी तरह हम करेंगे यूज थियोनिल क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थियोनिल क्लोराइड SOCl2. ये रिएक्शन प्रेफर होते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैशियस फॉर्म. SO2 HCl गैशियस फॉर्म वो एस्केप हो जाते हैं और हमारे पास प्योर हेलो अल्केन प्रिपेयर होता है. वो सारी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पहले याद रखेंगे विच इज द बेस्ट रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, इट इज फ्रॉम द थियोनिल क्लोराइड. अल्कोहल को रिएक्ट करते
करते हैं हम थियोरम को SOCl2, वहाँ पे बनता है हमारा अल्कोहल हेलो अल्केन क्लोरो अल्केन बनता है, और SO2HCl जो हमें बाई प्रोडक्ट्स वहाँ पे निकलते हैं वो निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेज। देयरफॉर जो हमारे यहाँ पर क्लोरो अल्केन बनता है, कह सकते हैं वो बनता है प्योर फॉर्म में। अल्काइल हैलाइड्स, इसके अलावा हम कर सकते हैं HXNZSL2। इसमें एक ही बात याद रखनी है, HClZnCl2 1:1 रेशो को हम कहते हैं लूकास रिएजेंट, और इस रिएक्शन को कहते हैं ग्रूज रिएक्शन। ये टेक्स्ट से बाहर है थोड़ा सा। लूकास रिएजेंट के साथ जो अल्कोहल रिएक्शन दिखाता है टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट to distinguish between the tertiary alcohol, secondary alcohol and the primary alcohol। HCl और ZnCl2 के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन दिखाता है फास्ट? इट इज़ tertiary alcohol ग्रूज रिएक्शन है। दिस इज लूकास रिएक्शन। Alkyl halides are best prepared from alcohols which are easily accessible. The hydroxyl part of an alcohol is replaced by halogen on reaction with a concentrated halogen acid, phosphorus halides or thionyl chloride. Thionyl chloride is preferred. याद रखना, thionyl chloride is preferred because the other two products are escapable gases, hence the reaction give pure alkyl halides. Phosphorus tribromide and triiodide are usually, phosphorus tribromide या triiodide जो होते हैं phosphorides, वो generally हम reaction के दौरान ही prepare करते हैं, उसको कहते हैं in situ preparation। Phosphorus tribromide or phosphorus triiodide are usually generated in situ, that is produced in the reaction mixture by the reaction of the red phosphorus with bromine and iodine। रेड phosphorus with bromine and iodine, यहाँ पे जो phosphorus ट्राईहालाइड बनता है, phosphorus bromide या phosphorus bromide या phosphorus triiodide, phosphorus tribromide या phosphorus triiodide बनता है, वो बनता है in situ। The preparation of the alkyl chloride is carried out either by passing the hydrogen chloride gas through a solution of the alcohol, or by heating a solution of the alcohol in the concentrated aqueous acid, or heating a solution of the alcohol in the concentrated aqueous acid। अल्कोहल से प्रिपरेशन करने के लिए हमें बहुत सारे रिएक्शन, अल्कोहल से HXNZNCl2 NaBH H2SO4 PX3 PCl, या पहले ये तीन अलग करेंगे हम। थियोरम क्लोराइड से बेस्ट प्रिपेयर, ये अलग। उसके बाद एक रिएक्शन रहती है वहाँ पे, दैट इज ROH NaBr H2SO4 RBr NaHO2। वेरी सिंपल याद रखने का तरीका, ये मेरा पता नहीं 50-60 पता नहीं, याद ही नहीं है मुझे रिवीजन कितने किए होंगे मैंने इस ऑर्गेनिक टेक्स्ट में, कि पता ही नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ पढ़ रहा हूँ, या रफली लग रहा होगा मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे रिविजन्स किए हैं इस टेक्स्ट बुक के, बहुत सारे रिविजन्स किए हैं मैंने। पिछले साल भी ऐसे ही पढ़ी थी ऑर्गेनिक के, माशाल्लाह सारे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन टाइम लिमिटेड होने की वजह से फिर नहीं हो पाया। देखो, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल अगर हम पढ़ेंगे, प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन अगर हम पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल की जो बेस्ट हेलो अल्केन की बेस्ट प्रिपरेशन होती है फ्रॉम द थियोरम क्लोराइड SOCl2। यहाँ पे RCl बनता है, SO2HCl जो बनते हैं वो बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैशियस फॉर्म, वो एस्केप हो जाता है, इसलिए जो अल्काइल क्लोराइड जहाँ पे बनता है वो होता है प्योर फॉर्म में। इस रिएक्शन को हम डार्जन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद दूसरी रिएक्शन में फॉस्फोरस हैलाइड्स में हम यूज़ कर सकते हैं PX3 PX5, या हम कर सकते हैं यूज़ रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन और आयोडीन यूज़ करेंगे। यहाँ पे इन situ बनते हैं PX3, ब्रोमीन आयोडीन में PI3 या PBr3 इन situ बनते हैं, दैट इज इन द रिएक्शन ROH को जब इनसे रिएक्ट करते हैं। तीसरी जो रिएक्शन है दैट इज NABR सॉरी, ROH को रिएक्ट कर सकते हैं हम NABR इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पे सिंपली RBR बनेगा। जो ये रिएक्शन है, यहाँ पे पहले RBR बनता है, NaHSO वाटर निकलता है बाहर, NaHSO4 वाटर निकलता है बाहर, और वाटर निकलता है बाहर। जो मेन प्रेपरेशन दैट इज डार्जन, क्योंकि यहाँ पे SO2 और HCl बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ ये। इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन दैट इज ROH प्लस HXZnCl2। यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम HCl इज टू ZnCl2 इन द रेशियो ऑफ 1:1। इस रिएजेंट को कहते हैं हम लूकास रिएजेंट, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम ग्रूज रिएक्शन। अगर ऑर्डर देखेंगे, रिएक्शन ऑफ HCl इज टू ZnCl2 विद टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यहाँ पे कार्बोकैटाइन बनता है, वो मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना डिटेल में, कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट, लूकास टेस्ट कहते हैं, लूकास टेस्ट।
Lucas test. Lucas test can be performed to distinguish between the tertiary, secondary and the primary alcohol by the reaction of HCl and ZnCl2. Tertiary alcohol जल्दी रिएक्शन दिखाता है, उसके बाद सेकेंडरी दिखाता है, उसके बाद प्राइमरी दिखाता है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वो हम NCERT से पढ़ेंगे. जो मेन रिएक्शंस हैं वो इतने ही हैं प्रेपरेशन के लिए. फॉर एग्जांपल इसमें इससे एक मिस हो गया मेरा रिएक्शन ऑफ ROH प्लस PX3. ROH को रिएक्ट कराएंगे हम PX3 के साथ. ROH प्लस PX3 यहाँ पे पता ही RX बनेगा, हेलो अल्किन बनाना है. और H3PO3 दूसरी रिएक्शन सेम है उसमें, लेकिन PX5 है. उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी याद रखना है. इसमें भी एक प्रोडक्ट तो RX बनेगा ही, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट बनता है POCl3 और एक HCl. ये याद रखना है. सीधे वो पूछेगा यहाँ पे ऐसे डालेगा क्वेश्चन ROH, फिर होगा PCl5 या PX5 होगा, फिर RX होगा, फिर यहाँ पे डैश होगा, फिर वो ये ठूसेगा वहाँ पे. लेकिन है याद रखना POCl3 प्लस HCl बनेगा प्रोडक्ट. दोनों याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट. In C2, the reactions of primary and the secondary alcohol with HX require the presence of the catalyst ZnCl2. जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ी, reaction of the primary and secondary alcohol with HX require the presence of the catalyst ZnCl2. With tertiary alcohol, the reaction is conducted by simply shaking with the concentrated HCl at room temperature, constant boiling with the HBr in presence of the H2SO4 gives RBr plus NaH4 plus H2O. Good yields of the RI may be obtained by the heating alcohol with sodium and potassium iodide and 95%. Good yield से याद रखना है. This reaction जहाँ पे in situ preparation होती है phosphorus triiodide या phosphorus tribromide की, that is preferred for the good yield में. उस reaction में good yield में prepare कर सकते हैं हम alkyl iodide या alkyl bromide. Alcohol is given to the order of the reactivity of the alcohol is the given halo acid is given by the above method is not applicable for the preparation of the aryl halides because of the carbon oxygen bond in phenols has a partial double bond character and is difficult to break being stronger than the जो हम ऊपर preparation पढ़ी these are purely from the alkyl halides not from aryl halides, क्योंकि aryl halides में जो कार्बन और हेलोजन के दरमियान जो बॉन्ड था उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. उसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाती है. दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ड्यूरिंग अंडर दीज रिएक्शन कंडीशन. पहली जो प्रेपरेशन हमने पढ़ी दैट वाज फ्रॉम द अल्कोहल. इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. अल्कोहल से कौन कौन. पहली जो मेन प्रेपरेशन है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है दैट इज डार्जन रिएक्शन, दैट इज थियोरमिक क्लोराइड SOCl2. ये इसलिए प्रेफर्ड है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं सल्फर डाइऑक्साइड HCl वो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस होते हैं, और हमारे पास जो अल्काइल क्लोराइड बनता है वो बनता है प्योर फॉर्म में. फर्स्ट रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन इज फॉस्फोरस हैलाइड. फॉस्फोरस हैलाइड्स के लिए हमें टेक्स्ट बुक में 3 रिएक्शन दी गई हैं. पहली रिएक्शन है ROH को रिएक्ट करेंगे PX3 के साथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड. यहाँ पे बनता है RX और H3PO3. खाली 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं H3PO3, याद रखना है H3PO3. दूसरी रिएक्शन करते हैं फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ PX5. यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बन. RX तो बनेगा ही, तो पता ही ये प्रिपेयर करना है. और बनेगा प्रोडक्ट POCl3. इसके अलावा HCl. यहाँ पे हम X को Cl लेंगे. उसके बाद इन सीटू प्रेपरेशन. इसमें सबसे गुड यील्ड में अगर हमें अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना है, सबसे गुड यील्ड में इसी में प्रिपेयर होता है. ब्रोमीन आयोडीन के साथ रेड फॉस्फोरस यूज़ करेंगे. इसमें इन सीटू प्रेपरेशन होती है PX3 दैट इज X. वहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन होगा. यहाँ पे RBr बनेगा. तीसरी रिएक्शन है फ्रॉम द ये एडिशनल रिएक्शन है NaBr प्लस H2SO4. यहाँ पे RBr बनेगा और NaHSO4 बनेगा और H2O बनेगा. लास्ट रिएक्शन जिसको हम ग्रूव्स रिएक्शन कहते हैं. ग्रूव्स रिएक्शन इसमें रिएजेंट होता है HCl:ZnCl2 1:1 रेशियो. इस रिएजेंट को कहते हैं हम लूकास रिएजेंट. दिस रिएक्शन इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्शियरी, सेकेंडरी एंड द प्राइमरी अल्कोहल. ऑर्डर भी पहले लिखा मैंने. उसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है. सिंपली पहले रिएक्शन लिखेंगे ROH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. यहाँ पे सिंपली RCl बनेगा. इसमें टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए रिक्वायर है ज़रूरी कैटलिस्ट ZnCl2. लेकिन टर्शरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट कराएंगे HCl को सिंपली शेकिंग करेंगे, उस वक्त ZnCl2 की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ये हो गया प्रेपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल. प्रेपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल. फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट बाय द फ्री रेडिकल हैलोजन. सेकंड पार्ट होगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम कर सकते हैं प्रिपेयर 3 तरीकों से. पहला है बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन. फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ द अल्केन्स गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द आइसोमेरिक मोनो एंड द पॉलीहैलोअल्केन्स व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड्स. कॉन्सिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी वन ऑफ द इज लो. इसमें हम जो रिएक्शन होती है
दैट इज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है. फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन से सिंपली डायरेक्टली क्लोरीन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द यूवी लाइट एक्ट्स एज ए हेल्पर. फिर वहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी. 3 स्टेप्स होते हैं उसमें. इनिशिएशन, पहले तो इनिशिएशन होगी, फिर प्रोपेगेशन होगी, फिर टर्मिनेशन होगी. वो हमने पढ़ा है पहले ही हाइड्रोकार्बन में डिटेल में. यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जाना है. सिंपली हम बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे. कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द हाइपर कंजुगेशन. अगर हम फ्री रेडिकल देखेंगे कार्बन, उसके इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन होंगे डायरेक्टली अटैच, उनको क्या वो इंक्रीज कराते हैं उसकी स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन. यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, मोनो और पॉली तो नहीं पढ़ना है. यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स. डिफरेंट हाइड्रोजन्स को निकालना है, डिफरेंट उस वहाँ पे क्लोरीन को ऐड करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन दी है टेक्स्ट बुक पे, हमें CH3 CH2 CH2 CH3 को रिएक्ट करेंगे हम क्लोरीन के साथ. इन तरह से यूवी लाइट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इट एक्ट्स एज ए हेल्पर. ये करता है मदद फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल. यहाँ पे देखो ये कार्बन और ये कार्बन सिमिलर है, और ये कार्बन सिमिलर. देयरफॉर देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन. या तो ये हाइड्रोजन हम निकालेंगे या ये हाइड्रोजन निकालेंगे. वो यहाँ पे बनेंगे हमें टोटल प्रोडक्ट्स 2. या बनेगा हमें CH2 CL CH2 CH2 CH3. या बनेगा CH3 CH2 CH3 और Cl. 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे. डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को 2 ही प्रोडक्ट्स बनेंगे. इसमें से अब कौन होगा स्टेबल, या तो ये होगा स्टेबल या ये होगा स्टेबल. कौन ये होगा स्टेबल बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगी. हाइपर कंजुगेशन उसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस. फर्स्ट प्रेपरेशन वाज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से जो फर्स्ट प्रेपरेशन है इट इज़ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. दूसरी प्रेपरेशन हम पढ़ेंगे बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करवाएंगे. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. Aryl chlorides and the bromides can be easily prepared by the electrophilic substitution of the arenes with chlorine or bromine respectively in the presence of the Lewis acid. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है. दूसरी जो प्रेपरेशन है इज थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करवाएंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये कंपाउंड CH3. यहाँ पे 2 तरह की सब्स्टिट्यूशन हो सकती है. या तो रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी कहीं पे, या तो चेन में सब्स्टिट्यूशन होगी. रिंग में करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं लिविस एसिड. चेन सब्स्टिट्यूशन करने के लिए जो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को निकालेंगे बाहर, हैलोजन को ऐड करेंगे. यहाँ पे हैलोजन एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए कहते हैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन साइट या इलेक्ट्रॉन लविंग. अभी या तो होगा रिंग सब्स्टिट्यूशन या होगा साइड चेन हैलोजिनेशन कहेंगे या सब्स्टिट्यूशन कहेंगे. साइड चेन सब्स्टिट्यूशन. रिंग सब्स्टिट्यूशन के लिए हम करते हैं यूज़ लिविस एसिड. साइड चेन हैलोजिनेशन के लिए करते हैं यूज़ हम यूवी लाइट का. यहाँ पे लिविस एसिड यूज़ करेंगे. सिंपली यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, या तो ऑर्थो या पैरा. उसमें से पता ही मेजर कौन होता है, पैरा हेलो. इसको कहते हैं हम टॉलिन. कॉमन नेम है इसका टॉलिन, ये तो पता ही है. इसको अगर हम X2 करेंगे एट इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, एग्जांपल आयरन करेंगे यूज़ या FeCl3 करेंगे यूज़, यहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशन होगी. एक तो प्रोडक्ट बनेगा ये, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये. इसमें से ये मेजर होता है, ये माइनर होता है. हमने पहले प्रेपरेशन ऑफ द फ्रॉम अल्कोहल्स पढ़ी. अब दूसरी प्रेपरेशन पढ़ी फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन पहली प्रेपरेशन थी फ्रॉम द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. सिंपली हैलोअल्केन से प्रिपेयर करना है फ्री रेडिकल हैलोजन. दूसरा हमने हैलोअरीन से प्रेफरेबली हैलोअरीन से प्रिपेयर किया. उसके लिए हमने रिंग सब्स्टिट्यूशन करा विद द हेल्प ऑफ द लिविस एसिड. वहाँ पे पैरा ऑर्थो बना. Aryl chlorides and the bromides can be easily prepared by the electrophilic substitution of the arenes with chlorine and the bromine respectively in the presence of the Lewis acid catalyst like iron or Lewis acid catalyst. The ortho and the para isomers can be separated to a large difference in their melting point. Ortho and para में large difference होता है melting point के easily they can be easily separated. Reactions with the iodine are reversible. ये याद रखना, ये हाइड्रोकार्बन में लिखे है. अगर हम आयोडीन के साथ सेम रिएक्शन करेंगे बट वो रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है इन नेचर and require the presence of an oxidizing agent HNO3 or HIO4 requires the presence of oxidizing
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और HiO4 to oxidize the HI formed during the iodination. Fluoro compounds are not prepared by this method due to high reactivity of fluorine. Fluoro compounds react नहीं करते. Therefore electrophilic substitution में खाली हम या तो क्लोरीन कंपाउंड्स या ब्रोमीन कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं. फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होती है हाईली वायलेंट होती है. आयोडीन के साथ रिएक्शन रिवर्सिबल होती है. वहाँ पे हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक HNO3 HiO3 की ज़रूरत होती है, HiO4 HNO3 की ज़रूरत होती है जनरल में. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने दूसरी रिएक्शन जो पढ़ी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पढ़ी, पहले पढ़ी फ्रॉम द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, दूसरी पढ़ी फ्रॉम द electrophilic substitution. Third reaction is Sandmeyer reaction. When a primary aromatic amine dissolved और ये amines में पढ़नी है Sandmeyer reaction preferably हमें amines में पढ़नी है. amines पहले हम diazonium salt को prepare करेंगे. कैसे amine को react कराएंगे NaNO2 and HCl. NaNO2 HCl के साथ at 0 to 5 degree Celsius low temperature पे stable, क्योंकि high temperature पे water loss करता है amine करता है loss. यहाँ पे हमें अराइल हैलाइड प्रिपेयर होगी सैंड में रिएक्शन. व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन अ कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट. ये तो पहले डायज़ोनियम साल्ट प्रिपेयर कर. डायज़ोनियम साल्ट के साथ हमें प्रिपेयर करना है रिएक्ट कराना है क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड. क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2X2. क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड इसमें होती है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1. क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड. फिर नाइट्रोजन गैस यहाँ पे लीक होता है. डायज़ोनियम रिप्लेसमेंट ऑफ द डायज़ोनियम ग्रुप बाय द आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द क्यूप्रस हैलाइड. वहाँ पे यूज होता है Ki बाय शेकिंग विद द डायज़ोनियम साल्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड. बाय शेकिंग द साल्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं सिंपली.